Students, today we will discuss the lesson marginalization and social justice. Marginalization means हाशियाकरण, किसी मेन स्ट्रीम से किसी व्यक्ति को बाहर निकाल देना, एंड सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय कि उनका हाशियाकरण कैसे हुआ और उनके साथ क्या सामाजिक न्याय मिला, उनको क्या मिला. Objectives are given. Marginalized class are given here in that scheduled caste, अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस और अन्य जो पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटीज जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स और अन्य हाशियाकृत जो समूह, मैनुअल स्क्वेंजिंग, हाथ से जो गंदा काम करना, कहने का मतलब कचरे इत्यादि की सफाई करना, सोशल इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक स्टेटस, और हम उसके जो सामाजिक समानता है और आर्थिक जो उनका स्तर है, इनके बारे में पढ़ेंगे. लेकिन टुडे वी हैव टू डिस्कस जस्ट द मीनिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन फर्स्ट. क्लियर? देन वी विल डू द अदर थिंग्स लाइक सोशल जस्टिस, जो सामाजिक न्याय के बारे में बातें करनी है वो बाद में करेंगे. हियर इट इज रिटन marginalization and social justice. Clear? हाशियाकरण. It means here it is main base. Clear? Or main stream or main society. Here this. This is society. And when someone is marginalized, जब इसमें से किसी को बाहर निकाल दिया जाए, clear? या फिर इसमें से यही कहीं भी, ये देखिए ये एरिया जो, इसको हम लोग है ना क्या बोलेंगे, मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी. क्लियर? मार्जिनलाइज्ड पीपल, हाशियाकृत, जो हाशिया, ये जो मेन बॉर्डर है इससे जो बाहर है वो हाशिए पे चले जाते हैं. कहते हैं ना कि जनता हाशिए पे आ गई है. कहने का मतलब क्या होता है कि जनता के पास अधिकार समानता है वो नहीं रही. पहले भी ऐसे होता था, लेकिन आजकल भी कुछ है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ इस पे हुआ है. सामाजिक न्याय मिला उनको, उनके राइट्स मिले, माइनॉरिटीज के शेड्यूल्ड कास्ट का रिजर्वेशन हुआ है, शेड्यूल्ड ट्राइब को मिला है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन है, आरक्षण दिया गया है इनको. तो वो दैट इज कॉल्ड सोशल जस्टिस टू मार्जिनलाइज्ड पीपल, जो हास्यकृत लोग हैं उनके लिए जो सामाजिक न्याय मिला है. तो वी हैव टू डू जस्ट माइंड मैपिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट मीन बाय मार्जिनलाइजेशन. Out of society, person are the marginalized, and to get them out of mainstream is called marginalization. Clear? Here it is written. If we read that very lesson, meaning will be clear. Marginalization is a social process, एक सामाजिक प्रक्रिया है by which some section of society are confined to lower social standing. उनका जो स्तर है वो निम्न होता है. These people are not permitted or allowed to mix or move with the rest of society. Here it is society. Clear? And they are out of this. They are out of this. They are on the margin. हाशिए पे वो. That's why marginalization has been done to them. उनके साथ हाशियाकरण हुआ है, यानी मतलब उनको समाज से बाहर निकाला गया है. Which are those? They are not permitted or allowed to mix move with the rest of society. इसमें मिक्स नहीं कर दिया जाता, उनको मिक्स नहीं होने जाता. Like untouchable, छूत, अछूत बोलते हैं जिनको, छुआ नहीं जाना चाहिए. छुआछूत की जो प्रॉब्लम थी, later they will be later they called scheduled castes, scheduled tribes or other backward classes, or in the, we can say, small population, they are also called minorities like Sikhs, Muslims, like that. They are all are marginalized ones. Marginalized include scheduled caste, scheduled tribes, OBC, minority, other marginalized groups, manual scavenging, social, and later we have to read about their rights, their economic status, their funding. Economic funding by the government, like subsidized scheme are given to those persons, and special aid is given, economic aid is given.
by the government, state as well as union government. Here, like people with disease such as leprosy, tuberculosis, etc., like that, these are untouchables. जिस प्रकार किसी को रोग लग जाता है ना उससे दूर रहते हैं, वैसे इन समाज के लोगों से दूर रह जाते हैं. These groups of people are isolated, excluded from the mainstream of society. It means here excluded, निकाले गए. Clear? Not included. It means not included, जो शामिल नहीं है. Clear? Not included. In this chapter, we will try to understand who these oppressed classes are. कौन है ये जो दबे कुचले लोग, oppressed? What steps have been taken up for their upliftment? उनकी भलाई के लिए क्या कार्य किया गया है? Scheduled caste. The first thing, or the main marginalized person are the scheduled caste people. Practice of untouchability is the most inhuman of all evils. सबसे बड़ी बुराई जिसको कहेंगे वो थी छुआछूत. Millions of people in our country suffered on account of untouchability. कहता है छुआछूत के कारण बहुत से लोगों ने पीड़ा झेली. The untouchables, now called scheduled caste, suffered social, economic and political injustice. कहने का मतलब oppressed लोगों को ना ही तो सामाजिक न्याय मिला, ना ही आर्थिक न्याय मिला उनको, और ना ही राजनीतिक न्याय मिला. A group of people who didn't belong to caste hierarchy lived outside the village. कहता है ऐसे लोग जो हमारी जो हायरार्की है, अर्थात हमारा जो रहने का सिस्टम है समाज में, उससे बाहर रहते हैं. विलेज इन द पास्ट, जो पहले रहा करते थे, आजकल दे आर इंक्लूडेड वन. Nowadays we can't make them do something otherwise. Constitutionally we are restricted to do what we have done in the past. जो हमने पास्ट में उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया, they are oppressed one. They are not oppressed nowadays like that. They were considered outcast because of nature of works. क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका था ना, उसके कारण में इनको आउटकास्ट बोला जाता था कि कास्ट से बाहर है ये. They carried night soil and clean animal flesh were considered to be polluting in nature, so they began to be called untouchable. वो जो उनका काम धंधा ऐसा था कि उससे उनको अनटचेबल कहा जाता था. कास्ट सिस्टम वॉज हेरिडिटरी, अनुवांशिक थी, पीढ़ी से पीढ़ी चलती गई. दे वर सो डिस्टेंट, they were also denied education, उनको शिक्षा भी नहीं मिली. They were not allowed even to enter the temple, उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देता. एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और भाई जो शैक्षणिक संस्थान उनमें प्रवेश नहीं. दे हैड ए सेंस ऑफ डिसएडवांटेजेस, वो हमेशा एडवांटेज में नहीं थे. कहने का मतलब उनको किसी चीज़ का लाभ नहीं था. डिप्राइव्ड, वो वंचित थे. एंड पावरलेसनेस इन कंपैरिजन, और पावर विहीन थे वो लोग, उनके पास शक्ति नहीं थे. टू द डोमिनेंट पर्सन, हु आर द डोमिनेंट पर्सन, हु आर द मेन सोसाइटी या सोशल पर्सन वी कैन से. दोज आर नॉट मार्जिनलाइज्ड वन, दोज आर नॉट आउटकास्टेड वन, दोज आर कॉल्ड डोमिनेंट वन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म शेड्यूल कास्ट इन सिंपल वर्ड्स. अब भारतीय संविधान ने इसको परिभाषित करती है किस टर्म में? अनुसूचित जाति के रूप में. वी कैन से दैट कास्ट विच आर फॉर्मली ट्रीटेड एज अनटचेबल. ऐसी जाति को अनुसूचित जाति कहा जाता है जिसको अनटचेबल माना जाता था पहले इन द सोसाइटी. समटाइम दे आर ऑल्सो रेफर टू एज दलित. उनको दलित भी बोला जाता है. किनको बोला जाता है दलित? वो आर द पर्सन, ठीक है, विच बिलोंग्स टू, हु बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट. अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, जो भारत की जनगणना हुई है 2011 में, उसके अकॉर्डिंग कहा गया है इसमें कि देयर नंबर was 201.4 million, which is 16.6% of total population of India. कहने का मतलब approximately 16% population consists Dalits, a scheduled caste person. According to Article 341, it
means 341 of the Constitution. The president may specify the caste. प्रेसिडेंट जो भारत का राष्ट्रपति है उसको अधिकार है कि वो विशेष किसी जाति को स्पेसिफाई कर सकता है, बता सकता है, विच शैल बी कंसिडर्ड एज ए शेड्यूल कास्ट, कि किसको शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड किया जाएगा, किसको शामिल किया जाएगा. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेशल प्रोविजंस टू सेफगार्ड द शेड्यूल कास्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. और हमारे जो संविधान में प्रावधान किया गया है कि कैसे हम लोग उनको कुछ विशेष सुविधाएं दें उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उनके शोषण के विरुद्ध. और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है मेड प्रोविजंस टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट. उनकी स्थिति में सुधार कैसा लाया जाए इसके लिए भी किया गया. इट प्रोहिबिट्स एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. इसमें ये लिखा गया है कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते, सच एज द कास्ट, क्रीड और कलर, किसी जाति के आधार पर, रंग के आधार पर या किसी मत के आधार पर. अनटचेबिलिटी वॉज लीगली अबॉलिश्ड. और छूत है ना, उसको अबॉलिश कर दिया गया, उसका उन्मूलन हो गया, उसका खात्मा हो गया है. इट इज नॉट नो मोर नाउ वी कैन से. अब ये नहीं है. ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग द रिलीजियस वन हैव बीन ओपन फॉर द शेड्यूल कास्ट. अब शेड्यूल कास्ट के लोग मंदिरों में जा सकते हैं, पहले अलाउड नहीं था. नो पर्सन belonging to scheduled caste can be denied entry to public place like shops, hotel, restaurants, cinema hall, fairs, etc. अब सभी जगह छूट है, चाहे वो मेला हो, कोई सिनेमा घर हो, रेस्टोरेंट हो. नो चाइल्ड कैन बी डिनाइड एडमिशन टू एनी स्कूल और इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ हर हिज कास्ट. और किसी को अधिकार नहीं है कि कोई मतभेद करे उनके साथ जाति के नाम पे. For that provision, some provisions are written here. Some provisions have been made to improve the condition of scheduled caste. Seats are reserved for scheduled castes in educational institution and for government job. All are known to this. सभी जानते हैं कि आरक्षण है. Many agitation had been there in the past. हो चुके हैं बहुत से एजिटेशन, आंदोलन रिजर्वेशन के बेस पे भी. Next is some constituencies of Lok Sabha and the state assemblies are reserved for scheduled caste. For example, Sarsa, Lok Sabha seat or Lok Sabha constituency is reserved for SCBC. Clear to you? You know very well. Nowadays, who are our MP? Who is our MP? It means we can say that belongs to who belongs to scheduled caste. Some constituency of Lok Sabha and the state assembly are reserved for scheduled caste and scheduled tribe candidates. From these constituency, only scheduled caste or scheduled tribe candidate can contest the election only. Next one, providing textbook to scheduled caste and scheduled tribe students of engineering medical courses free of cost on behalf of government, from the government fund. Scholarships and passages grants for higher education in abroad के लिए, विदेशी शिक्षा के लिए उनको स्कॉलरशिप देना. प्रोग्रेस ऑफ दीज क्लासेस हैव बीन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5-year प्लान टू. ये पंचवर्षीय योजना में भी इनका स्पेशल प्रोविजन होता है. ए लार्ज सम हैज बीन स्पेंट टू इम्प्रूव देयर स्टेटस. उनका स्तर भी सुधारा जाता है. डिफरेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट्स हैव बीन सेट अप फॉर देम. अब देखो इनके लिए समाज कल्याण विभाग होता है, उसके लिए वो करता है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट्स, जो मंत्रालय है सामाजिक न्याय और शक्तिकरण का, वो इसकी देखभाल करता है. शेड्यूल कास्ट की, माइनॉरिटीज की, अल्पसंख्यक की जैसे सिख्स हैं इंडिया में, या फिर एंड बैकवर्ड क्लासेस. थ्रू such efforts the government aims to increase their political power and social justice. उनको है ना राजनीतिक और सामाजिक न्याय भी मिलता है इस प्रोविजन से. शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर गिवन just like that. Scheduled caste special provision has been made or have been made in that constitution to improve those conditions of scheduled tribes. These are also given. You have to read themselves up to
page number 181. Clear? You have to do this much only, and you have been told in this video very main important topics, and you can do mind mapping by writing in the middle very topic and the allied thing or that related thing on the margin side. Like here it is written society. Which sort of society? Marginalized society, where marginalization has been done. ठीक जिसमें समाज के लोगों ने उन शेड्यूल कास्ट को दूर निकाल दिया. Here it is written untouchables, अछूत लोग जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस etc. And here definition is given of marginalized section of society which is marginalized. Clear? Today this much is only, and we will do the next in the next video. Thank you.